السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سوال و جواب کا سلسلہ سیرت النبی کے اوپر آج ہم چوتھی قسط اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سبھی لوگ اس سے مستفید ہوں۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئیں، ان کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اسے 3 کھجوریں دیں، اس نے دونوں کو ایک ایک دے کر تیسری بھی آدھی آدھی ان میں تقسیم کر دی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ساری باتیں عرض کر دی۔ فرمایا کیا عجب ہے کہ وہ عورت اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3668۔ اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظم صاحب، جنگ فجار کن فریقین کے درمیان ہوئی؟ جنگ فجار قریش اور قیس بن عیلان کے درمیان ہوئی۔ بنو کنانہ اور قریش اور قیس بن عیلان کے درمیان ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس جنگ کو جنگ فجار کیوں کہتے ہیں؟ اس جنگ کو جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینوں کی حرمت چاک کی گئی۔ بالکل صحیح۔ فتح الباری جلد نمبر 3 اور 24 سے یہ چیز لی گئی ہے۔ حرام مہینے کون سے ہیں؟ حرام مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4662۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر کون تھا؟ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ جنگ فجار کا سبب کیا تھا؟ جنگ فجار کا سبب یہ بنا کہ براس بن قیس نامی ایک آدمی کو قروۃ الرجال نامی ایک آدمی نے حرمت والے مہینے میں ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ سن کر قریش والے ان سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنگ فجار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جنگ فجار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ ابتدا کے وقت 15 سال، اختتام کے وقت 20 سال۔ سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 243۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس جنگ میں شرکت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا۔ یہ ابن حشام جلد نمبر 1 24 میں بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ حدیث سند کے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں شرکت علامتی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں شرکت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں شرکت کرنے کا مقصد مقامات مقدسہ اور دیگر محارم کا دفاع تھا۔ ابتدا قیس بن عیلان نے ہی ظلم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کی تھی۔ مظلوم کی مدد کرنا تمام انبیاء اور مصلحین کا وصف رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس جنگ میں شرکت کیوں نہ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت اس لیے نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ علامہ سہیلی نے یہ علت بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اعلیٰ کلمت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے جنگ نہ کریں۔ بالکل۔ الروض انف سہیلی جلد نمبر 1 209۔ حلف الفضول المتیبین۔ حلف الفضول کا معاہدہ کب ہوا؟ حلف الفضول کا معاہدہ ذی القعدہ میں ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔
अलसीरतुल इब्न हशाम जिल्द नंबर 1 186। हिल्फुल फजूल मुआहिदा का सबब क्या बना? हिल्फुल फजूल मुआहिदे का सबब ये बना कि यमन के एक कबीला जुबैद का एक आदमी सामान तिजारत लेकर मक्का आया तो आस बिन वाइल ने उसे खरीदा और कीमत देने से इनकार कर दिया। वो आदमी कबाल से मदद मांगने लगा तो किसी ने मदद सब ने मदद देने से इनकार कर दिया। बिल आखिर बिल आखिर वो पहाड़ी पर जी जी जी। बिल जब आखिर अभी कैस पर बिल आखिर वो जबल अबी कैस पर चढ़ा और आवाज लगाई। उनकी आवाज पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमैया बिन मखसूम बिन मुर्रा उमैया बिन मखसूम बिन मुर्रा उनकी मदद को आए। सनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 6 366। बिन आमिर अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, जिसकी 3 बेटियां हों और वो इन पर सब्र करे, जगह परवाह न करे कि बेटियां हैं, और इन्हें खिलाए पिलाए पहनाए अपनी ताकत और कमाई के मुताबिक, तो ये 3 बेटियां भी रोज़ क़यामत इसके लिए दोज़ख से आड़ और रुकावट का सबब बन जाएंगी। सनन इब्न माजा हदीस नंबर 3669। किसके घर में कबाइल इकट्ठे हुए और किस बात पर मुआहिदा हुआ? अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पर कबाइल इकट्ठे हुए और जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद पर मुआहिदा हुआ ताकि इसका हक दिलाया जाए। फिर ये लोग आस बिन वाइल के पास गए, इस मजलूम का सामान छीनकर इनके सपुर्द किया। हाँ? अभी थोड़ा सा जो कच्चा मामला होता है थोड़ा सा याद कर लिया करें आप, ठीक है बेटा। अब्दुल्ला बिन जुदान कौन था? अब्दुल्ला बिन जुदान अब्दुल्ला बिन जुदान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का करीबी रिश्तेदार था और यह कबीला बनु तमीम से ताल्लुक रखता था। ये कबीला बनु तमीम से ताल्लुक रखता था। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का करीबी रिश्तेदार था और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का रिश्ते में चचा लगता था। बहुत सखी मेहमान नवाज था। मेहमानों को खाना खिलाता और फकीरों को देता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में क्या पूछा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई दिन अभी कच्चा है। क़यामत के दिन इसका ये जो वो करम इसके लिए नफ्स बख्श होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने एक दिन भी नहीं कहा कि मेरे रब क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ कर दे। रब्बिग़फ़िरली हय्य खतीअती यौमद्दीन। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाबुद दलील अली मन मात अलल कुफ्र जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 115। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मर्द को भी 2 बेटियां बालिग हो जाएं और उनके साथ हुस्न सलूक करे, खिलाए पिलाए, दीनी आदाब सिखाए, जब तक वो बेटियां इसके साथ रहें या वो मर्द इन बेटियों के साथ रहें, हुस्न सलूक में कमी न आए, तो ये बेटियां उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करवाएंगी। सनन इब्न माजा हदीस नंबर 3670। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहिदे के बारे में क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहिदे के बारे में फरमाया कि अगर मुझे ऊँटों का एक रेवड़ भी दे दिया जाता तो मैं अहद तोड़ना गवारा नहीं करता। जी। मसनद अहमद जिल्द नंबर 3 123। इसकी सनद सही है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिद से क्या वर्षा मिला था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। वा, वालिद से वालिद से 5 ऊँट, बकरियों का एक रेवड़ और एक हबशी लौंडी उम्मे ऐमन बरका वरासत में मिली थी। जवान होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई नबी मबऊस नहीं फरमाया मगर उन्होंने बकरियां चराई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा और आपने कहा कि मैं भी चंद सिक्कों के एवज अहले मक्का की बकरियां चराया करता था। बिल्कुल सही। अल बुखारी हदीस नंबर 2262। ज़माने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तिजारत कौन था? ज़माने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तिजारत हरब साइब बिन अबी साइब और उनका भाई नहीं, जवाब गलत है। अब्दुल्लाह बिन साइब और उनके वालिद साइब बिन अबी साइब। कैस बिन अबी साइब फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गए थे। अबू शरीफ खज़ाई से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह पर रोज़ आखिरत पर ईमान रखता हो इसे चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करे। जो अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि भली बात कहे या खामोश रहे। सनन इब्न माजाह हदीस नंबर 3672। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर कहाँ गए? दो मरतबा खमीस मुशीद यमन या शाम तशरीफ लेकर गए। मजमा मुआलिम जोग्राफिया फी सीरतु स्वाद 82। ये जो भी चीज़ मैं बतला रहा हूँ ये बिल हवाला है, ठीक है ना। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौन सा गुलाम आपके साथ था? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलाम खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलाम हजरत मैसरा आपके साथ थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास किसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने कहा कि खदीजा तुमको बुलाने में सबकत करेगी। ये बात किसी ने हज़रत खदीजा को बता दी तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको कहला भेजा कि मैं आपको दुगनी तनख्वाह दूंगी। बिल्कुल। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उजरत मुकर्रर की? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 ऊँटनी उजरत मुकर्रर की। माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बाजार में सामान लेकर गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार में सामान तिजारत लेकर गए जो मक्का से 1600 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। मैसरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात की कौन सी बातें बयान की? मैसरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की सिद्क़ गोई और सच्चाई पर मबनी आदात अखलाक बयान की और बताया कि बसरा के एक दरख्त के नीचे बैठे तो वहाँ के राहिब ने बताया कि आज तक यहाँ पर सिर्फ नबी ही बैठे हैं। बसरा में एक दरख्त के साये में बैठे तो नस्तूरा राहिब कहने लगा, इस दरख्त के नीचे आज तक नबी के सिवा कोई शख्स नहीं ठहरा। धूप के वक्त 2 फरिश्ते आपके सर पर साया कर देते थे। सईद बिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ ये भी है, ऐ अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगता हूँ इल्म गैर नाफे से, यानी जिसके मुताबिक अमल न करे, और इस दुआ से जो
सुनी न जाए, और उस दिल से जिसमें खौफ न हो, और ऐसे नफ्स से जो कभी भी सैर न हो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा पहलू खुद अपनी आंखों से देखा? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सीरत रसूल का वो पहलू अपनी आंखों से देखा जब आप दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हो रहे थे। गर्मी का ज़माना था तो आप पर दो फरिश्ते साया फगन थे। मयस्सरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा और तौहीद के बारे में क्या क्या बयान किया? इसी सौदे के बारे में दोनों का इख्तिलाफ हो गया तो मैसरा ने कहा कि आप लादो उस्सा की कसम खाकर कहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने कभी उनकी कसम नहीं खाई, बल्कि मैं उनके पास जाते वक्त अपना मुंह हटा लेता हूँ। उस शख्स ने सुनकर कहा, यह शख्स नबी है। हमारे उलमा ने इनके औसाफ अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। मजमा ज़वाइद हैशमी जिल्द नंबर 8 256। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किसके सामने मज़कूरा वाक़यात बयान किए? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी चचा वर्क़ा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने चचा वर्क़ा बिन नौफल के सामने मज़कूरा वाक़यात बयान किए। क्या वाक़यात बयान किए? ये बातें सच्ची हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। मुझे भी इल्म है इस उम्मत में नबी आने वाला है जिसका इंतजार हो रहा है। इस नबी का ज़माना आ चुका है। मजमा औसत इमाम ने तिबरानी ने हसन सनद में बयान फरमाया है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किसके ज़रिए पैगाम निकाह भिजवाया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी सहेली नफीसा बिन उमैया के ज़रिए पैगाम निकाह भिजवाया। बेवक्त निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? बेवक्त निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की निकाह के वक्त 40 साल उम्र थी। जी, फतहुल बारी जिल्द नंबर 14 290 और तबकातुल अल-कुबरी जिल्द नंबर 8 17 में ये चीज़ें बयान हुई हैं। निकाह के वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से वली कौन था? इसमें इख्तिलाफ है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके वालिद खुवैलद निकाह में वली थे, लेकिन सही रवायात में है कि खुवैलद जंग फिजार में मारे गए। उनके भाई आपकी चचा वली थे या उनके भाई वली थे। जी, इसमें इख्तिलाफ में ये है, वालिद खुवैलद जंग फज्जार में मारे गए थे। अल-रौज़ुल अनफ जिल्द नंबर 1 325 में। दूसरा सवाल ये है, जवाब ये है, यानी इख्तिलाफ राय, चचा उमर बिन असद, ये दलाइल अन-नबुव्वा लिल-बहकी में जिल्द नंबर 2 और 72 में ये बयान हुआ है। तीसरा, इब्न इसहाक के मुताबिक भाई उमर बिन खुवैलद थे। ये रौज़ुल अनफ जिल्द नंबर 1 214 में, व अल-बदाया व निहाया जिल्द नंबर 2 325 में, सहल अल-हदी व रिशाद जिल्द नंबर 2 225 में इस चीज़ का इशारा मिलता है। मैं जितनी भी चीज़ें ये बयान किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताब और सुन्नत के हिसाब से, इसीलिए किताब का नाम और जिल्द और जितनी भी सफ़हात चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं बयान किया हूँ। आप अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिएगा। आपका खादिम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला, वो हमारा साथ देने में हमारे अपने भतीजे मोहम्मद नाज़िम बिन मतीउर रहमान बिन अब्दुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی